तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Students, we are going to start your English from class 10th. Today we are discuss about the unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Means Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam अदलो इंसाफ के पैकर। ठीक है। First of all, we are going to discuss about the some introduction of this chapter. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an embodiment of justice. He sallallahu alaihi wasallam practiced high standards of justice. For him, everyone equal before law. He decided all cases with justice and equity. To him, justice was more important than anything else. Even non-Muslims were so impressed by his justice that they brought their cases to him to decide. All through this life, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never did any injustice with anybody. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam always remained fair and just all through his life. Even before his prophethood, he sallallahu alaihi wasallam was well known for his honesty and fair dealings as a trader. The people of Makkah were highly impressed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's fair dealing in business and trusted him. He sallallahu alaihi wasallam embodied justice, practically applying this trait in his life. The Prophet practically applied the sense of equality and brotherhood that he sallallahu alaihi wasallam established among members of the Islamic society, even on himself. When the Messenger of Allah, peace be upon him, was inspecting the rows of the companions before the Battle of Badr, the past one companion that was slightly protruding from the line, so the Messenger of Allah, peace be upon him, pushed him back to be in line with the others. As a result, the man left complaining about this and wanted to take retribution from the Prophet, peace be upon him. The Prophet, peace be upon him, allowed the man to take retribution from him. Consequently, the companion asked the Prophet to uncover his stomach in order to retaliate. The Prophet, complying with the companion's wishes, shows how he, peace be upon him, was a physical representation of great justice with both his relatives and non-relatives, a justice that is based on the truth and gives people their rights. But all the companion did was to embarrass the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and kiss his stomach. The companion wanted that to be the last thing he did before entering the battle. Therefore, the Messenger of Allah, peace be upon him, supplicated Allah for the companion to receive good. He sallallahu alaihi wasallam do even justice against his close relatives. The story of the woman from Banu Makhzum who stole highlights this point. Her family sought the help of Usama bin Zaid in order for him to intercede for them with the Messenger of Allah, peace be upon him. But the Messenger of Allah, peace be upon him, did not accept such intercession, replying with words that history has preserved for all time. What destroyed the nation before you was that if a noble amongst them stole, they would forgive him, and if a poor person amongst them stole, they would inflict Allah's legal punishment on him. By Allah, if Fatima, the daughter of Muhammad, stole
I would cut off her hand. So students, इस तरह की जो कहानियाँ ये हमें बताती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ भी इंसाफ का मामला फरमाते थे. As head of the state of Medina, the Holy Prophet, peace be upon him, practiced high standards of justice. He sallallahu alaihi wasallam decided cases brought to him by different people without considering their color, creed or race. He sallallahu alaihi wasallam decided every case with justice and equity. He sallallahu alaihi wasallam made it clear through his practical example that justice must be upheld at all cost. So students, this was a brief introduction about the chapter. Now we move on to the translation. First paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and the guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक कामिल नमूना है जो अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी, माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारका से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबाए ज़िंदगी में पैरवी के लिए पूरी बनीनो इंसान की खातिर अपनी अमली मिसाल के ज़रिए नहायत आला और शानदार नमूने कायम फरमाए हैं. Students, there are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 1. First one is attain. बेटा attain को हम ऐसे pronounce करेंगे और इसका meaning होगा हासिल करना और इसका synonym होगा achieve. Piety means तकवा, devotion. Seek तलाश करना, look for. Achieve हासिल करना, reach या पहुंच जाना. Spiritual का मतलब होता है रूहानी, मीन रिलीजियस. आइडियल्स तसव्वुरात, मॉडल. फील्ड शोबा, एरिया. स्टूडेंट्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स बेटा आपके पैराग्राफ नंबर 1 से लिए गए हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकें. यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताई गई है ताकि आप उनको अदा करने का तरीका आपको आ सके कि लफ्ज़ों को पढ़ना कैसे है. उनके मीनिंग्स भी बताए गए हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके. सिनोनिम्स बताए गए हैं ताकि आप जो है इनको याद करें और इससे अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करें. नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 1. फर्स्ट वन इज़ अटेन. अटेन का मतलब बेटा होता है हासिल करना. तो इसका सेंटेंस होगा द कार कैन अटेन आ टॉप स्पीड. पाइटी, हर जेन्युइन पाइटी वाज वेल नोन. सीक, द मॉस्क इज़ सीकिंग डोनेशन. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दी थे. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं कि आपने उनकी घर पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें और आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी याद करने हैं अपने होमवर्क में. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि कोई भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसाफ पसंद और आदिल नहीं हो सकता. बतौर एक नौजवान ताजर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, खरे और इंसाफ पसंद कारोबारी आदमी की हैसियत से अच्छी शोहरत पाई. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ खरे और मुनसफ़ाना मामलात रखे.
जब खाना काबा की तामीर की जा रही थी तो लोगों में हजर अस्वद के हवाले से एक झगड़ा या तनाज़ा खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए इंतहाई मुनसफ़ाना तजवीज़ पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली तसादुम से बचा लिया। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू? So the answer is, the Holy Prophet, peace be upon him, resolved the issue very judicially by advising the most equitable plan for the setting of the black stone. It pleased everyone and saved them from tribal conflict. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुनसफ़ाना तजवीज़ पेश की जिसकी वजह से हर कोई खुश हो गया और कबीलों के दरमियान में जो झगड़ा था वो टल गया। Now there are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 2. फर्स्ट वन इज़ इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है बेटा मुनसिफाना, फेयर। मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला या पैगंबर, मैसेज कैरियर। ट्रेडर, तिजारत करने वाले शख्स को ताजिर यानी कि कहते हैं, और डीलर भी हम इसको कह सकते हैं। रेपुटेशन, शोहरत या स्टेटस। डीलिंग्स, लेन देन, बिजनेस। डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वर्ल। कॉन्फ्लिक्ट, तसादुम, डिसएग्रीमेंट। Students, there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 2. Equitable, each person must have an equitable share. Messenger, the messenger brought your note today. Trader, the old man was a trader in tea. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने अपने होमवर्क के तौर पर ख़ुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है अच्छे तरीके से और उनकी प्रोनाउंसिएशंस को याद करना है और सिनोनिम्स को अपनी वोकैबुलरी के तौर पर यूज़ करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 3. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी irrespective of color, creed or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, मज़हब या नस्ल से कता ताल्लुक़ तमाम मामलात के फ़ैसले अदल इंसाफ के साथ इस्तेहकाक की बुनियाद पर किए। एक दफ़ा कुरैश की एक औरत चोरी के इल्ज़ाम में पाई गई। कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त व नामूस को बचाने की खातिर उसे सज़ा से बचाना चाहते थे। Student, there is a question in the box. Why did the Quraysh think that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? इसका आंसर हम बाद में पहले करेंगे, पहले हम इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। They asked हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to intercede on her behalf. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि वो उनकी तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उस औरत को माफ़ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नाराज़गी से फरमाया कि बनी इसराइल इसी वजह से तबाह व बर्बाद हुए थे कि वो गरीबों पर कानून को लागू करते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन, व्हाई डिड द कुरैश थिंक दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? कुरैश के लोग ये क्यों समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कोई फेवर देंगे, उन्हें कोई इस बारे में छूट दे देंगे? सो द आंसर इज़, as the holy prophet peace be upon him himself belonged to the tribe of Quraysh, they thought that he sallallahu alaihi wasallam would favor them. कुरैश के लोग ये समझते थे कि क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी कबीला कुरैश से था, तो वो ये समझते थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई ना कोई फेवर देंगे या छूट दे देंगे। There are some difficult words, pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 3. Creed. क्रीड का मतलब होता है बेटा अकीदा, फेथ। गिल्टी, कसूरवार, ब्लेमेबल। र्यूंड, र्यूंड का मतलब होता है तबाह बर्बाद, डिस्ट्रॉयड। फ्यूरियसली, गुस्से से, एक्सट्रीमली एंग्री। इक्विटी, बराबरी, जस्टिस। इंटरसीड, सिफारिश करना, मीडिएट। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, शील्ड। Students, there are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 3. First one is creed.
The law apply to everyone irrespective of creed. Guilty, they feel guilty for accident. Ruined, my new shoes got ruined in the mud. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है और घर पर जितने भी रह गए हैं आपने उनको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है, सिनोनिम्स को, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स को भी याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 4. ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु Salba sitting there stood up and pointing toward them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. दुराने खुतबा एक इंसारी कबीला बनु सलबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, इनके अबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं या इल्तमास करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी लगवा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। Students, there are some difficult words, pronunciations, meaning and synonyms related to the paragraph number 4. First one is sermon. Sermon का मतलब होता है बेटा खुतबा, address. Ancestor, अबाओ अजदाद, forefathers. Member, अफराद, group of people. Hanged, hanged का मतलब होता है फांसी देना, swing. Revenge, बदला, pay back. Replied, जवाब देना, answer. Pointed, इशारा करना, sharp. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 4. Sermon. After sermon, they all stood. Ancestors. Her ancestors were great sea captains. Member. I am a member of the band. तो बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस इजी वर्डिंग में आप कोशिश करें कि आप इन सेंटेंसेस को बनाएं ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं, आप इन सिनोनिम्स को याद करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करेंगे, उनको अदा करने का तरीका देखेंगे यहाँ से प्रोनाउंसिएशन में, ताकि आपको इस पैराग्राफ को समझने में आसानी हो। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 5. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम and he decided the cases in accordance with the Jewish law. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल इंसाफ की बिना पर इस कदर मशहूर थे कि यहूदी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त जो कि दुश्मन थे अपने मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कानून के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला फरमाया करते थे। He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ या तो उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दिया करें या फिर मुदाखलत से इनकार कर दिया करें। अगर आप इनकार फरमा देंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला फरमाएं तो उनके दरमियान अदल इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला फरमाएं, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अदल इंसाफ के तहत फ़ैसला फरमाते हैं। ये बेटा कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जमा यहाँ पर बयान किया गया कि अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई यहूदी या कोई भी ऐसे कबीला आए जो कि आपको पसंद ना करता हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपके पास अपने लेकर आए मसलों को, तो आप उनके दरमियान दो काम कर सकते हैं। या तो आप उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें अदल इंसाफ के साथ, या फिर इनकार कर दें। इनकार कर देंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर आप फ़ैसला फरमाएं तो अदल इंसाफ से काम लें, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो अदल इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम्स trust the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam? So the answer is it was because they were impressed by the Holy Prophet's justice, क्योंकि वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ के रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे।
There are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 5. First one is bitter. Bitter का मतलब होता है शदीद, means sharp. Sur, sur का मतलब होता है बेटा मुकदमात, ठीक है, cases. Accordance मुताबिक, in line with. Interfere, interfere का मतलब होता है मुदाखलत करना, restrain. Decline, decline का मतलब होता है इनकार करना, decrease. Strictly सख्ती से, rigidly. Jews यहूदी, द पीपल हु बिलीव इन जूडिज़म, ऐसे लोग जो कि यहूदी मज़हब जो है उनके अंदर यकीन रखते हैं वो जूस कहलाते हैं, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसे मानते हैं. देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 5. फर्स्ट वन इज़ बीटर. द बिटर विंटर वॉज कमिंग. अकॉर्डेंस, आई एम ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद यू. इंटरफेयर, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बना दिए गए हैं सेंटेंसेस आपके लिए. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 6. जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसिस इवन इफ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन लाइफ, ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशन. ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड other people's affair with justice and told his companions to be just. इंसाफ तकाजा करता है कि उसे तमाम हालात में बरकरार रखना चाहिए, ख्वाह ये किसी के अपने के ख़िलाफ़ हो या उसके ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो. अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों लोगों के फ़ैसले इंसाफ के साथ किए और अपने सहाबा कराम को भी फरमाया कि वो मुनसिफ बने. It is reported by Hazrat Ali Razila Ta'ala anhu that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Ali Razila Ta'ala anhu ने फरमाया कि अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि जब दो आदमी आपके पास फ़ैसले के लिए आएँ तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक़ में फ़ैसला ना करें, फिर इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि आपको सच्चाई का इल्म हो जाएगा. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saying, any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कोई हुक्मरान जो गरीबों, ज़रूरतमंदों और मोहताजों के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है तो जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स. व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हज़रत अली? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को क्या नसीहत फरमाई? So the answer is the advice the Holy Prophet peace be upon him gave to Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu is as under: when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. कि दो लोग अगर आपके पास फ़ैसला करवाने के लिए आए तो कभी भी एक शख्स का फ़ैसला सुनकर फ़ैसला ना दें, बल्कि दोनों लोगों की बातों को सुने और फिर फ़ैसला करें. So there are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 6. First one is demand. Demand मतलब मुतालबा करना, request. Circumstances हालात, conditions, affairs मामलात, incidents, arguments दलाइल, fight, needy ज़रूरतमंद means poor, destitute मुफलिस lacking, upheld बरकरार रखना, sustain. Students, there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 6. First one is demand. The customer demanded a refund. Circumstances, he was a victim of circumstances. Affair, we do not want people preying into our affairs. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बेटा आपने बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके अपनी ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है घर पे सेंटेंसेस बनाने की और इनके सिनोनिम्स को याद करना है. वर्ड्स को डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सके, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके और आपकी सेल्फ राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके.
Now we move on to the paragraph number 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge on me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirham, which were paid to him. जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अगर मैंने किसी का कुछ देना है या अगर मैंने किसी शख्स से नाइंसाफ़ी की है या किसी की जायदाद या इज़्ज़त व नामूस को नुकसान पहुंचाया है तो मैं बज़ाते ख़ुद मेरी इज़्ज़त नामूस और मेरी जायदाद हाजिर हैं, वो इसी दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सिर्फ एक शख्स ने चंद दरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए थे। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाट डज़ द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन? प्रोक्लेम का क्या मतलब होता है? सो द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन टू पब्लिकली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। वी कैन यूज़ द वर्ड डिक्लेयर इन प्लेस ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है बेटा कि किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को बता देना, खुलेआम बता देना, ठीक है। तो हम प्रोक्लेम की जगह पर डिक्लेयर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 7। फर्स्ट वन इज़ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, रिवील करना, ठीक है। डैमेज, नुकसान पहुंचाना, हार्म। ऑनर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। साइलेंस, खामोशी, क्वाइटनेस। कंप्लीट, मुकम्मल, होल। डिमांडेड, तकाजा करना, रिक्वेस्ट करना। रॉन्ग्ड, ज़्यादती करना, अब्यूज़। There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 7. First one is proclaim. She proclaimed that she will run for governor. Damage, the fire caused damage into church. Honor, he is an honor to his family. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनमें से कुछ के सेंटेंसेस बना दिए हैं आपको एग्जांपल के तौर पर, और बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छी तरीके से और आपकी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है, उनके सिनोनिम्स को याद करना है ताकि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो सके। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 8. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से ये साबित कर दिया कि इंसाफ के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी मुस्तकिल मिजाज ना हो सका, ख़्वाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुफाद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार और अज़ीज़ के मुफाद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुकदमे का जो आपके दोस्त या दुश्मन आपके पास लाते, खौफ या हमायत के बगैर अदल व इंसाफ से फ़ैसला फरमाते थे। A person of such magnitude transcends the barrier of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. ऐसी अज़मत वाला शख्स वक्त और जगह की रुकावटों को अबूर कर जाता है। हर उम्र के अफराद अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़े तौर पर तज़किरा करता है। हमारे पास बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत से उम्मीद रखता है बेहतरीन नमूना है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 8. फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब मुफाद, प्रॉफिट. प्रोवाइड मुहैया करना, सप्लाई. क्लियरली वाज़े तौर पर, ऑब्वियसली. मेंशन
जिक्र करना, स्टेटमेंट, एस्पेक्ट, पहलू, फीचर, कंडक्ट, तौर तरीके, बिहेवियर, इंडीड, बिलाशुबा, इनफैक्ट. Words and sentences related to the paragraph number 8. First one is interest. I am interested in justice. Provide. They provide instructions at school. Clearly, the house is clearly visible. So students, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बेटा बना दिए गए हैं. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अपने घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने मीनिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है, उनके स्पेलिंग्स को याद करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके. ठीक है. आई होप आपको चैप्टर की समझ आ गई होगी. बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं. आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें. शुक्रिया.